Assalamu alaikum, dear students. Dear students, I'm just making a very important video as that will be directly applicable to your exam और definitely इसमें से एक सवाल निकलेगा। और जब आपको ये कंफर्मेशन दे दी है तो आप इस वीडियो को जिस फोकस और जिस अटेंशन से देखना आप चाहें वो जाहिर है जिस भी देखें वो कम होगी because you should have a complete grip on the topic which I am just right now going to discuss in this video. Before that, I just tell you that I have already shared with you the important questions of a final paper. These concepts will go in the final paper in some way or the other. So if you miss out on any of these topics and you don't have a good understanding, I said that good understanding of these topics, then definitely you are going to miss out something, some portion in some part of the final exam because these topics are there in the final exam in one way or the other. So I have just mentioned the topics here, but for finding out the ways of just implementing the question and finding that I have just said that the first point is the midterm paper. That I already have solved. This is the first point here. This is the first point. I already have solved this with midterm paper in one of my video lecture. Acha, if you have any problem in this understanding, then you can just come to my room. You can just drop me an audio message, and then I will just try to respond to it as soon as possible. The second point is here in these important questions are the important terms, and then there is a procedure for finding that particular thing, that term, where applicable. For example, if you just have a trivial solution here in this topics, then you must have a way of finding, you must have a knowledge of finding and the procedure of the finding out the trivial solution. And then you can only do it if you know that what is this word meaning, what is the meaning of this trivial solution. And I just tell you that trivial solution means when you reduce the equation to a homogeneous set of equations, that is you just make all the things which are right side of the equal sign, तो वो जो है वो जीरो बना दें अगर, तो उसको आप उसको होमोजेनियस इक्वेशन कहते हैं, होमोजेनियस सेट ऑफ इक्वेशंस कहते हैं, और फिर आप इसका सोल्यूशन मालूम करते हैं. इफ देयर आर द नंबर ऑफ इक्वेशंस आर इक्वल to the number of variables, then definitely there is only one solution, and that is trivial solution. That is all x, y, z, or x1, x2, x2, whatever the names of those variables are, they will be just equal to zero. But if there are free variables, for example, some variable is just not there, and the system of equation is not depending on that particular value. For example, there is a x5, the fifth variable, x, y, z, w, and maybe some other variable u, and that x5 is free variable, then that will become a parameter. And when you have a parameter, then you just can select any value for that parameter, and then we will just put in that value to find out the rest of the values. So that becomes a trivial solution. And then you have two terms, rank and nullity, that I will be just discussing in one of the upcoming lectures, not this one, but the next one. Trivial spaces. Every subspace has a trivial space. What are those trivial spaces? You just Google it and you will find out the result. Trivial subspace. Because every vector space has some subspaces as well. But there are some trivial spaces. देखिए एक zero space होती है और एक itself, the vector space itself. There are two trivial spaces for every vector space. Then this is vector space, the homogeneous set of equations, the solution of the homogeneous set of equations, and then echelon form. Echelon form is not unique, but reduced raw echelon form is unique. Orthogonal vectors, all those vectors which make up an angle of 90 degree, that is called orthogonal vector, and there is a standard way of finding out. You just multiply cross product and then cross product or dot product. You just find out a cross product, I guess. And then all those I and j and k and I and k become zero for a cross product, because cross products there is an angle of 90. तो ये जो है क्रॉस प्रोडक्ट मालूम करने, ऑर्थोगोनल फैक्टर मालूम करने का एक तरीका है, वो जो आप मालूम कर लेंगे इंशाल्लाह. हमने एक्सरसाइज में और वीडियोस में किया हुआ है. ये वेक्टर स्पेस ये दोबारा से आ गया, नो प्रॉब्लम. सब स्पेस ये दोबारा से आ गया. गॉस जॉर्डन मेथड आपको पता है, बेसिक रॉ ऑपरेशंस क्या होते हैं वो आपको पता है. कॉलम स्पेस, रॉ स्पेस की ये जो मैं आपको बना रहा हूँ वीडियो, दिस इज एंड द नल स्पेस, ये इसकी है. डिटर्मिनेंट फाइंडिंग बेसिस फॉर रॉ स्पेस एंड कॉलम स्पेस. तो ये डिटर्मिनेंट का वर्ड ऊपर चला जाता तो ज्यादा अच्छा था, बिकॉज दिस आई एम नॉट एड्रेसिंग राइट नाउ इन दिस वीडियो. आई एम जस्ट एड्रेसिंग दिस इन दिस वीडियो, द कॉलम स्पेस, द रॉ स्पेस, द नल स्पेस, एंड द फाइंडिंग द बेसिस फॉर द रॉ स्पेस एंड द कॉलम स्पेस.
And the next upcoming video, I will be just dealing with eigenvalues or eigenvector and eigenvalue, and there is these things QR composition. इंशाल्लाह उसको भी हम एक वीडियो में कवर अप कर लेंगे. So for current video, I am just taking you to the book. Then see, covering up this in 40-minute video is not an easy task because Zoom is putting up a limit on the length of the video. It just can't be then 40 minutes. So I will have to go a bit fast, try to catch up. And if you just miss out any point and you don't understand what I'm just saying, then you just can watch that portion again by just reversing it or what, you know it. Right? So what is row space, column space, and null space? In this section, we will study some important vector spaces that are associated with matrices. देखें किसी भी वेक्टर स्पेस को एक्सेस करने के लिए ना आपको कुछ बेसिस वेक्टर्स चाहिए होते हैं. फॉर एग्जांपल इफ यू जस्ट टॉक टू फॉर आर एन की बात ना करें, R2 की बात करें, तो जस्ट लेट्स कवर इट इन अ बिट डिटेल. तो ये आर ये R2 है. दिस इज होल इज R2. तो इसके लिए क्या वेक्टर चाहिए होते हैं आपको इसको कवर अप करने के लिए? तो इसके लिए एक वेक्टर चाहिए होता है, दिस वेक्टर, एंड दैट इज आई, एंड दिस वेक्टर जे. तो व्हाट इज आई वेक्टर? आई वेक्टर इज इक्वल टू 1,0 एंड जे वेक्टर इज इक्वल टू 0,1. And it's not necessary that you will be just needing these two vectors. Any two vectors, this and this, these two vectors, you just name it, u and v. These are just the basis vectors. It can be anything. In the same way, what we are right now talking about a raw space. तो देखिए raw space में क्या है? raw space is ये एक बेसिस वेक्टर्स है. आप इस स्पेस को, इस पूरी मैट्रिक्स में इसको दो हिस्सों में तोड़ लें. R1 को हम कहते हैं ऊपर वाली लाइन, R2 को दूसरी लाइन, R3 को तीसरी लाइन. ये Rm को जो mth लाइन, मतलब m ऑर्डर, m मल्टीप्लाई बाय n ऑर्डर है ना, तो देयर विल बी m लाइंस, m रोज एंड n कॉलम्स. तो ये जो है ये बेसिस वेक्टर बन गए. तो वो जो सारा वेक्टर स्पेस बनेगा, दैट विल बी स्पैन्ड यूजिंग द रॉ वेक्टर्स, दैट विल बिकम द रॉ स्पेस. और इसी तरीके से इफ यू जस्ट कंसीडर इट एज ए कॉलम वेक्टर्स, तो वो जो सारी वेक्टर स्पेस बनेगी, दैट विल बी कॉल्ड वेक्टर कॉलम स्पेस. एंड दिस कॉलम स्पेस एंड रॉ स्पेस इज गोइंग टू बी डिफरेंट. ये दोनों सेम नहीं होंगी, राइट? तो फॉर एग्जाम्पल हाउ जस्ट इट कैन बी सेम? इफ यू से दैट यस माई मैट्रिक्स इज टू वेक्टर्स एंड 2, 3, 1, 4. तो हम कह सकते हैं यस, इफ यू रॉ स्पेस एंड वेक्टर स्पेस, रॉ स्पेस इन द कॉलम स्पेस कैन बी सेम, कैन बी डिफरेंट. तो इस वाले केस के अंदर तो हम कहते हैं हाँ सही है भाई, 2, 1 और 3, 4, या रॉ 1. इसके जो रॉ 1 है, रॉ वेक्टर है, वो क्या है? इज इक्वल टू 2 एंड 1. और इसका रॉ 2 क्या है? रॉ 2 है इसका 3 एंड 4. इसी तरीके से इसका कॉलम 1 क्या है? इसका कॉलम 1 इज इक्वल टू, यू नो इट, देखिए 2 एंड 3. और फिर इसका C2 क्या है? कॉलम 2, 1 एंड 4. तो डेफिनेटली इसका जो स्पेस बनेगा ना, कॉलम स्पेस, रॉ स्पेस, ये R2 बनेगा. लेकिन इसका क्या बनेगा? 5 और 7, ये एक मैट्रिक्स है. तो इसके जो जो रॉ स्पेस है, वो तो इसके अंदर जो है इसके बेसिस वेक्टर्स बनेंगे. डेफिनेटली बेसिस वेक्टर्स कितने होंगे? 3 तो नहीं हो सकते R2 के. तो इसके अंदर से कोई एक वेक्टर जो है, ये 2 बन जाएंगे, और हो सकता है कि एलिमिनेट हो जाए. ये एलिमिनेट हो जाए, बेसिस ना बन सके इसका. अभी हमें फाइंड करना है ना इसको. नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस वीडियो हम फाइंड ही करेंगे बेसिस फॉर. सबसे पहले तो हम ये अंडरस्टैंड कर रहे हैं कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रॉ स्पेस इन द कॉलम स्पेस. तो इन दो वेक्टर्स की मदद से जो भी हम एक्सेस करेंगे, दैट विल बी रॉ स्पेस. और इन दो वेक्टर्स की मदद से हम जो करेंगे, दैट विल बी कॉलम स्पेस. अच्छा, अब क्या है? अब क्या है कि ये जो इसका कॉलम स्पेस है, इसका जो कॉलम स्पेस है, दैट इज मेड अप ऑफ 5. तो ये तो R3 है.
ये तो R3 है, और रॉ स्पेस क्या है इसका, इसका रॉ स्पेस तो डेफिनेटली जो है इसका रॉ स्पेस जो है वो R2 है। तो रॉ स्पेस एंड द कॉलम स्पेस कैन बी different. I hope that you understand it. अच्छा, in the same way, uh, there is one more thing, that is the null space. Null space. What is null space? देखिए, null space is given in the form of vectors. What you do is you just equate it. देखिए, जो भी रॉ स्पेस में आएगी ना बात, मैं आपको बताता हूँ थोड़ा सा अच्छे तरीके से बताता हूँ। अच्छा देखिए, मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस। अच्छा, न्यू किया, ओ सॉरी, मैं करने हूँ ये, इसको प्रिंट रख लेते हैं। अच्छा, अब अगर हमें इसका मालूम करना है कि इसके जो है लेट्स से कि कॉलम स्पेस में क्या है, तो हम क्या करेंगे, कॉलम स्पेस में कहेंगे कि भाई ये फाइंड आउट करो कि ये कॉलम स्पेस में है कि नहीं है। जरूरी नहीं कि हर चीज आए ना, हर चीज तो जरूरी नहीं है यहाँ पर, लेकिन लेट्स से कि मैं यहाँ पे वैल्यू लिख देता हूँ, ये लिख दिया मैंने कहा भाई ये फाइंड आउट करो कि दिस इज इक्वल टू, इज इट इन अ रॉ स्पेस, कॉलम स्पेस और नॉट। तो हम कहेंगे कॉलम स्पेस मालूम करने के लिए यहाँ पे इसका मतलब है कि हमें इन वेक्टर्स के कोई मल्टीपल्स चाहिए। बात समझ में आ रही है, नहीं आ रही है? मैंने खुद एग्जांपल गलत ले लिया असल में, मैं आपको ये वाली एग्जांपल लेके दिखाता हूँ। न्यूमेरिकल एग्जांपल, यस देयर इज वन, ये वाली मिसाल ले लेते हैं। ये देखो, I hope okay, this will be clear enough. I'm just trying, what I'm just trying to explain right now, I just again, मैं आपको बता दूं कि what मैं I'm just trying to explain. I'm trying to explain null space. देखिए, कॉलम स्पेस में मैंने बता दिया, अगर कॉलम स्पेस के अंदर ये चीज मौजूद होगी तो फिर जो है वी विल हैव टू फाइंड आउट जो मल्टीपल्स एक्स और x2 x3 की अगर हमें वैल्यू मालूम कर पता लग गई, तो दैट मीन्स दिस इज इन द कॉलम स्पेस। वो कैसे, देखिए मैं बताता हूँ आपको। ये क्या है, कॉलम वन है, इसको कॉलम वन को हम कैसे लिखते हैं, जिसको हम कॉलम वन लिख सकते, इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, कॉलम वन इज इक्वल टू, लंबा हो जाएगा बहुत लेकिन फिर भी चलें, कॉलम वन, वन, टू, इस तरीके से कॉलम टू भी हो जाएगा, और इसी तरीके से कॉलम थ्री भी हो जाएगा। कॉलम थ्री क्या होगा, टू माइनस थ्री माइनस टू। अगर हमने इस एक्स वन को मालूम कर लिया, एक्स वन टू, तो होता क्या है कि हम इसको इस तरीके से लिखते हैं, सी वन कॉलम पूरा ये वाला कॉलम मल्टीप्लाई बाई, ओ बड़ा सा हो गया, चले खैर, दिस इज एक्स वन, फिर इस तरह प्लस सी टू, द मैट्रिक्स, द कंप्लीट मैट्रिक्स, थ्री टू वन, ये थ्री टू वन, ये कंप्लीट मैट्रिक्स थ्री टू एंड वन, तो यहाँ पे सी टू है, थ्री टू वन। अब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे एक्स टू से, ये कहाँ से आया मैं आपको बता दूंगा अभी थोड़ी देर ठहर जाए, प्लस सी थ्री, और सी थ्री के साथ क्या आएगा, थ्री माइनस टू यहाँ से, और यहाँ से आएगा एक्स थ्री विल बी इक्वल टू वन माइनस नाइन माइनस थ्री, ये वाली बात। अगर हमें एक्स वन एक्स टू की एक्स थ्री की वैल्यू मालूम चल गई, तो इसका मतलब है कि ये हमारे पास क्या थे, सी वन सी टू सी थ्री कॉलम स्पेस थे, बेसिस थी, ये कॉलम वेक्टर्स थे ना, ये बेसिस थी, और इनके हमें मल्टीपल मिल गए। तो यही होता है ना कि फॉर फाइंडिंग एनी पर्टिकुलर गोइंग टू पर्टिकुलर पॉइंट, व्हाट यू डू, आई और जे को मल्टीप्लाई करते हैं ना किसी न्यूमेरिकल वैल्यू कांस्टेंट से, कोफिशिएंट से, तो हम लिख देते हैं जैसे कि थ्री आई प्लस फोर जे, तो ये फोर थ्री और फोर, तो यहाँ पे क्या है, ये एक्स एक्स टू एक्स थ्री क्या है, ये इसके कौन कौन वैल्यूज ही होंगी ना कोई। अगर कोई वैल्यू मिल गई तो हम कहेंगे कि दिस इज इन द कॉलम स्पेस, अगर वो वैल्यू नहीं मिली तो वो कॉलम स्पेस में नहीं होगा। सो दैट इज द पॉइंट। अच्छा, अब आप मेरे को मैं ये बता दूं कि ये मैंने लिखा कैसे है, ये कैसे लिखा है, ये हाउ आई जस्ट रोट दिस सी वन एक्स, वो ऐसे देखिए ना कि ये जो मल्टीप्लाई होगा वो क्या होगा इक्वेशन में, इसका मतलब है कि माइनस वन एक्स वन, यहाँ से किससे मल्टीप्लाई होगा, प्लस थ्री, किससे मल्टीप्लाई होगा, थ्री के एक्स टू से, एक्स टू से, और ये किससे मल्टीप्लाई होगा, टू प्लस टू
x3 से मल्टीप्लाई होगा, राइट। और ये किसके बराबर बनेगा, ये बनेगा 1 के बराबर। ये पहली लाइन आ गई। दूसरी लाइन कैसे हो जाएगी, बन जाएगी, ये बने मल्टीप्लाई होगा 1 x1, और ये होगा 2, मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई कर रहा हूँ सिर्फ मैं मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन कर रहा हूँ 2, और ये -3 के सिमिलर होगा -3 से। तो ये यहाँ पे क्या बन रहा है, ये तीसरी इक्वेशन में लिखने के बाद क्या बनेगा, तो दिस विल बिकम C1, और C1 किससे मल्टीप्लाई होगा, x1 से, तो ये x1 हो गया। ये क्या, ये किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, ये क्या है, ये C2 है। ये किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, C2 से, तो ये C2 x2 से मल्टीप्लाई हो रहा है। यहाँ पे ये तीनों चीजें, तीनों इक्वेशन आएंगी तो क्या होगा, 2 -3 -2 किससे मल्टीप्लाई होगा, तीनों जगह पे x3 होगा, तो यहाँ पे ये C2 आ गया, और ये x3 से मल्टीप्लाई हो गया, और यहाँ पे ये पूरा 1 आ जाएगा। दूसरी इक्वेशन में क्या आ जाएगा, -9, और तीसरी इक्वेशन में -3, तो ये यहाँ पर आ जाएगा। तो ये पूरा सेट ऑफ इक्वेशन बन जाएगा, विच आई हैव जस्ट रिटन इज C1 x1 प्लस C2 x2 प्लस C3 x3। आई होप दैट यू अंडरस्टैंड इट। जैसे आप लोगों ने मुझे क्लास में फीडबैक भी दिया है कि माय वीडियो लेक्चर्स आर क्लियर एनफ एंड यू आर मींस कंफर्टेबल, तो इसीलिए जो है मैं इतनी तेजी से जा रहा हूँ, बिकॉज आई हैव टू जस्ट कवर इट अप इन 40 मिनट्स ड्यूरेशन। यहाँ पे कुछ मुझे टाइम भी नजर नहीं आ रहा कि जूम में कितना टाइम बाकी है। एनीवे, so that I have just explained right now the column space and the row space. But what I just want to trying to just explain is null space. What is null space? Null space is कि null space का मतलब है कि you just make it zero। अगर इसको आप काट के 0 0 और 0 कर देते हैं, तो all the that things the solution set of x1 x2 x3 जो भी solution set बनता है, that becomes the null space। You see, the null space is what? Null space is the solution set of all the of combination values of this x1 x2 x3। इसके अंदर कोई फ्री वेरिएबल भी हो सकता है कि यहाँ पे कोई वेरिएबल हो x4, और वो कुछ x4 हो, और इसके लिए वो आ जाए 0 0 और 0। तो x4 तो फ्री वेरिएबल है, तो x4 की तो कोई कंडीशन ही नहीं है, तो x4 बिकम्स अ पैरामीटर। तो द सॉल्यूशन सेट फॉर अ होमोजेनियस सेट ऑफ इक्वेशंस, ये वो देखें, एक तो होगा ना कि x इज इक्वल टू 0, x1 इज इक्वल टू 0, x2 इज इक्वल टू 0, x3 इज 0, दैट इज जस्ट ट्रिपल सॉल्यूशन। लेकिन ट्रिपल सॉल्यूशन के अलावा की बात हो रही है कि द सॉल्यूशन सेट, दैट इज कॉल्ड द नल सॉल्यूशन। समझ में आ गई बात, null space, that is called the null space, all the solution set, all the values of x1 x2 x3। अच्छा, आई होप दैट दिस इज क्लियर एनफ। अब हमें आगे चलना है। अच्छा, तो हमें सोल्यूशन मालूम करना पड़ता है होमोजेनियस इक्वेशन के लिए, तो वो यहाँ पे दिया हुआ है, लेकिन आई एम जस्ट नॉट कवरिंग जनरल सोल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन। ये यहाँ पे देखें, ये क्या दिया, ये और ये फाइंड आउट करके ये वेक्टर फॉर्म में लिख दिए हैं इसका सोल्यूशन सेट। But I am just not going to into this detail. I am just explained what is the value for all the values of R, S and T, that becomes the null space। अच्छा, अब पॉइंट ये है कि एलिमेंट्री रो ऑपरेशन डू नॉट चेंज द नल स्पेस ऑफ अ मैट्रिक्स। यस, एलिमेंट्री रो ऑपरेशन डज नॉट चेंज द नल स्पेस ऑफ अ मैट्रिक्स। और जब नल स्पेस पे ही नहीं, कैसे नहीं करेंगे, अफेक्ट कैसे नहीं करेंगे नल स्पेस के ऊपर रो ऑपरेशन, इसकी है कि जो जो नल नल स्पेस होगा, उसकी जो आप रिड्यूस एक्सटेर्नल फॉर्म बनाएंगे, तो वो क्या होगा, यहाँ पे तो 0 0 होगा, ये तो 0 0 होगा, यहाँ पे कुछ भी हो, कुछ भी हो, लेकिन आउटपुट पे ये वाले कॉलम में तो 0 ही होगा। तो रॉ ऑपरेशन इन 0 पे तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, किसी से 0 से किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे, तो ये वाली लाइन को पूरा हर चीज 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगी, लेकिन 0 पे क्या फर्क पड़ेगा, नथिंग। अच्छा, इस वाली 0 को इस वाले में ऐड कर देंगे, या इस 0 का मल्टीपल को इसमें ऐड कर देंगे, तो क्या फर्क पड़ेगा, नथिंग। अगर आप इस वाली पूरी रॉ को बदल के इस वाली रॉ पे लिख देंगे, तो इस वाले 0 पे क्या फर्क पड़ेगा, कोई नथिंग। तो इसका मतलब है कि रॉ स्पेस डेफिनेटली, रॉ ऑपरेशन डज नॉट अफेक्ट द नल स्पेस डेफिनेटली। In the same way, elementary raw operation do not change the raw space of a matrix। raw space null space को तो change करता नहीं है, लेकिन raw space को भी change नहीं करता, that is the main point। अच्छा, raw operation, the elementary raw operation does not change the raw space, that is the main point, that has to be understood crystal clear, because that we are just going to use in the next स्टेप, जो कि एग्जाम का सोल्यूशन सवाल भी बनेगा, और आपको जो है वो फ्री एक सुकून होगा कि एक सवाल तो आपको बड़ा अच्छा आ गया है
by just watching this video. Even if you have to watch this video 2 times or 3 times, just go for it. Because what right now I'm doing, explaining the direct concept, and then I'm then just doing the practice question. तो आपको इस वाली वीडियो को देखना है, अगर पूरी वीडियो ना भी हो 40 मिनट्स में, तो आप इसको जो है दूसरी वीडियो में इसकी रिकॉर्ड करूंगा, वो भी आपने वॉच करनी है। ओके, तो होगा क्या कि तो इसके अंदर देखें कि ये आपने क्या किया, दो वेक्टर्स हैं आपके पास 1 3 2 6, ये दोनों आपस में मल्टीपल थे, तो आपने इसको मल्टीप्लाई किया तो ये 0 बन गया। तो रॉ स्पेस तो इसका कोई भी चेंज नहीं हुआ है। तो ये जो था ना, ये 0 0 हो गया। असल में इसके रॉ स्पेस एक लाइन ही थी, दो दो नहीं थे। अगर दो होते और एक हो जाता तो हम कहते कि यार ये दो थे और एक हो गया। तो दो थे और एक हो गया, लेकिन ये दो नहीं थे बिकॉज ये मल्टीपल था ना। तो ये असल में ये जो था वो, ये जो था एक वेरिएबल ये था और एक वेरिएबल इसका ऊपर ही था। तो इसके बाद ये इसका वेक्टर स्पेस क्या बनेगा, वेक्टर स्पेस तो इसकी लाइन ही बन जाएगी। तो इसका मतलब है कि एक वेक्टर स्पेस तो आपके पास बेसिस इसका ये एक बन गया, और दूसरा वेक्टर स्पेस जो है वो बेकार था, तो इसलिए वो एलिमिनेट हो गया। देख लेना, मतलब रॉ स्पेस ने, रॉ स्पेस चेंज नहीं हुई है, रॉ स्पेस चेंज नहीं हुई है। लेकिन अब इसके जो कॉलम स्पेस है, ये कॉलम इसका लाइन था, लाइन थी ना, मतलब ये क्या है। अब जो है कॉलम स्पेस क्या बन गया, कॉलम स्पेस बन गया 1 और 3। अब ये जो था, सिंस दैट कॉलम स्पेस कंसिस्ट ऑफ ऑल स्केलर मल्टीपल्स ऑफ 1 2, the matrix B can be obtained from A by adding -2 times the first row to the second. However, this operation has changed the column space of A. Row space तो change नहीं हुई है, since that column space consists of all scalar multiples of 1 and 2, whereas इसके अंदर तो जो है कॉलम स्पेस 1 और 2 का जो है मल्टीपल्स थे ना, एक था 1 और 2 का। whereas the column space of B consists of all scalar multiples of only 1, तो इसका तो कोई मल्टीपल आएगा ही नहीं। तो इसका अगर कॉलम स्पेस कुछ था, 1 और 2 का मल्टीपल था, ये 1 और 2, लेट्स से कि मैं कहता हूँ कि ये 1 और 2 का ये वेरिएबल था, 1 यहाँ पे और ये 2 पे यहाँ पे, तो जो इसका कॉलम स्पेस था वो ये था, ये सारी लाइनें थी यहाँ थी। लेकिन अब जो है वेरिएबल जो बन गया है वो तो बन गया है 1 0। तो 1 0 का जो है वो आ गया, ये वाला वेक्टर आ गया 1 और 1 0। तो इसके तो कॉलम स्पेस ये वाला बन गया है स्ट्रेट लाइन, तो ये तो कॉलम स्पेस चेंज हो गया। समझ में आ गई बात, रॉ स्पेस चेंज नहीं होती, कॉलम स्पेस चेंज हो गया। तो रॉ ऑपरेशंस डू चेंज द कॉलम स्पेस। ये बात आप समझने की कोशिश करें। इफ यू हैव एनी अंडरस्टैंडिंग प्रॉब्लम, यू जस्ट कम टू माय ऑफिस, आई विल जस्ट एक्सप्लेन इट इन डिटेल। अच्छा, अब देखें, ये जो मैं आपको वीडियोस बना रहा हूँ ना, इसमें जितनी आप एफर्ट करेंगे उतना ही आपका अच्छा होगा। इसमें डेफिनेटली पुराने कॉन्सेप्ट भी इस्तेमाल हो रहे हैं क्लास में, जैसे हैं यश हैं या शिल्पा हैं, वो तो और दूसरे लड़के भी हैं, वो हैं जो है, नाम मुझे याद नहीं है, बट डेफिनेटली 4 5 लड़के बहुत अच्छे हैं जो हर वक्त क्लास में होते हैं। उसमें कुछ जो है गर्ल्स भी हैं। तो वो जिस लेवल पे इस बात को समझेंगे ना, वो फिर जो है, आप अभी स्टार्ट करें तो डेफिनेटली आपको ये बात उस लेवल पे समझ नहीं आएगी। लेकिन फिर भी जो मैं प्रोसीजर बता रहा हूँ ना, उसको तो आप हजम कर लें, बिकॉज दैट डजेंट मेक डिफरेंस कि आपको पीछा कॉन्सेप्ट आता है या नहीं आता। अगर आप प्रोसीजर फॉलो करने में आप एग्जाम का सवाल पूरा कर लेते हैं, तो बल्ले बल्ले, फिर तो ठीक है, सही है, जाइए, आता है नहीं आता, लेकिन आप मेरा ये वाला पॉइंट समझ जाए और आपको एग्जाम सॉल्व हो जाता है, तो दैट्स गुड इनफ फॉर यू, फॉर द एग्जाम पर्पज। ओके। अच्छा, मैंने आपको बता दिया कि कॉलम स्पेस रॉ ऑपरेशन जो है ना, कॉलम स्पेस चेंज कर देते हैं, और रॉ ऑपरेशन रॉ स्पेस नहीं चेंज करते हैं। नल स्पेस भी मैंने आपको बता दिया है। अच्छा, अब हमें मालूम करना है नल स्पेस, द बेसिस फॉर द नल स्पेस, एंड देन वी हैव टू फाइंड आउट द बेसिस फॉर द कॉलम स्पेस। अच्छा, तो नल स्पेस को तो मैं एलिमिनेट कर देता हूँ, डायरेक्ट सवाल पर आ जाते हैं। बेसिस फॉर द रॉ एंड कॉलम स्पेस फॉर मैट्रिक्स इन रॉ एशेलॉन फॉर्म। तो देखें, इसके जो है ये रॉ एशेलॉन फॉर्म में दी हुई है, रॉ एशेलॉन फॉर्म है, रिड्यूस रॉ एशेलॉन फॉर्म में नहीं है, और रिड्यूस रॉ एशेलॉन फॉर्म करने की जरूरत भी नहीं है। आप सिर्फ रॉ एशेलॉन फॉर्म लेकर आए, ये रॉ एशेलॉन फॉर्म में दे दिए। तो इसके जो है बेसिस वेक्टर्स मालूम करने के कितने हैं बेसिस वेक्टर्स। तो इसके बेसिस वेक्टर जो हैं, ये वो वाले आगे जिसके अंदर सबके अंदर ये अपनी जगह पर 1 है। ये पिवट है ना 1, ये सेकंड कॉलम में 1, ये थर्ड कॉलम में 1। तो ये वेक्टर्स जो थे 1 2 5 0 3, रॉ 1 रॉ 2 एंड रॉ 3 हमारे पास इसमें नहीं है। देखें, थर्ड में ये नहीं है,
फोर्थ में है, तो हम इसको कह सकते हैं ना कि ये अपनी पिवट पोजीशन पे है, क्योंकि इसको अगर आप रॉ को चेंज कर देंगे तो यही बन जाएगा ना। यहाँ पर रॉ को चेंज कर देंगे, आप इस थर्ड रॉ का फोर्थ रॉ में लिख दें तो ये पिवट पोजीशन पे आ जाएगा, चौथी पोजीशन पे आ जाएगा, तो सही है, ठीक है। तो ये ऊपर जीरो आ जाएगा, तो ठीक है, सही है, कोई फर्क नहीं पड़ता, नीचे रहे जीरो। तो ये तीन वेक्टर्स आपके रॉ ऑपरेशन हो गए। अच्छा, कॉलम कौन से बनेंगे? कॉलम जो है ये वाले नहीं बनेंगे जो रॉ एशेलन फॉर्म में, अभी तो रॉ एशेलन फॉर्म ओरिजिनल फॉर्म में कोई और हमने ऑपरेशन किए ही नहीं है। तो ये बन गए वन, ये वाला कॉलम, ये वाला कॉलम -2 1, और फिर ये वाला कॉलम 0 0। ओ यस, ओ यस, इस बात को समझने की जरूरत है कि इसमें जो है ना, ये जो रॉ था ना, इसको अगर हम इसको यहाँ पे ले आएंगे तो हमारे पास ये वेक्टर यही रहेगा, सही है। लेकिन हम कॉलम स्पेस के अंदर जब वेक्टर्स मालूम करते हैं तो हम ओरिजिनल मैट्रिक्स इस्तेमाल करते हैं, ओरिजिनल मैट्रिक्स इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, अब ये वाला जो है आपको सवाल समझ में नहीं आएगा इस तरीके से, तो मैं आपको दूसरा सवाल करवाता हूँ। अच्छा, ये हो गया। वो कौन सा सवाल कर रहे थे? ये वाला कर रहे थे, अब ये वाला कर रहे हैं नया। वो था हमारा एग्जाम्पल 5 और ये एग्जाम्पल 6 है। फाइंड आउट, फाइंड द बेसिस फॉर द रॉ ऑपरेशन। तो ये आप रिड्यूस करते हुए चले गए, इसको आप रिड्यूस करने के लिए जाएं तो आप इसको रॉ ऑपरेशंस करके रिड्यूस एशेलॉन फॉर्म, नहीं, एशेलॉन फॉर्म में लेकर आ गए। एशेलॉन फॉर्म में लेकर आ गए तो इसमें आपको बन गया कि यहाँ पे एक आपके पास मौजूद है, ये इसको आप रो को नीचे पलट दें तो आपको आ सकता है, ये आ गया यहाँ पर, तो ये मौजूद है 1 3 4 -2, ये आ गया 0 0 1 3 -2 6, और ये वाला भी है, तो ये आ गया 0 0 0 0 1 एंड 5। लेकिन कॉलम बेसिस क्या होंगे? कॉलम बेसिस इस वाले मैट्रिक्स में से नहीं उठेंगे, कॉलम बेसिस आपके इस वाले में से उठेंगे, तो इसमें से होगा 1 2 2 -1। ये देखें, 1 2 2 -1, ये एग्जाम्पल 7 में से इन्होंने ये कहा कि बेसिस फॉर कॉलम स्पेस, तो ये हो गया 1 2 2 -1। तो ये सवाल चेंज कर दिया इन्होंने ना, 1 2 2 -1, 3 रॉ एशेलॉन फॉर्म। अच्छा, ये आ गए, और हाँ ना, ये तो इन्होंने तो इस वाले के कॉलम उठाए ना, लेकिन ये वाले कॉलम जो है ये बेसिस नहीं बनेंगे। दस द कॉरेस्पॉन्डिंग कॉलम ऑफ वेक्टर, ओरिजिनल वेक्टर, ओरिजिनल और वेक्टर्स ऑफ ए बनेंगे। तो ये बन गया 1 2 2 ये। फिर कौन सा बना था जिसके अंदर 1 था? तो ये हो गया 4 4 9 9 -4 ये, और फिर किसका था? ये वाला था, तो 5 5 8 9, ये यहाँ से ओरिजिनल मैट्रिक्स में से उठेंगे, सही है। हैविंग सेड दिस, मैंने इस टॉपिक को कंप्लीट कर दिया है। अब आपको सवाल ये है कि हाउ टू फाइंड आउट द बेसिस फॉर द रॉ स्पेस एंड द बेसिस फॉर कॉलम स्पेस। अब हम इसकी एक्सरसाइज कर लेते हैं। अच्छा, एक्सरसाइज कर लेते हैं। फाइंड गो टू द क्वेश्चन नंबर 1। इन एक्सरसाइज 1 and 2 एक्सप्रेस द प्रोडक्ट ऑफ ए एक्स एज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ द कॉलम वेक्टर्स ए। तो इसको जो लिखते हैं, सवाल भी कॉपी कर लेते हैं। अब जब तक ये चलेगी ना हमारे पास वीडियो, तो हम जब तक लेक्चर एक्सटेंड करेंगे, और जहाँ पे ये बंद हो गई तो फिर हम जो इसको, ये सवाल है, इसको लिखना है, तो यहाँ पे लिखते हैं, तो कॉलम की सूरत में लिखना है इसको। तो ये कैसे हो जाएगा? ये आ जाएगा कि आपने लिखा 1 × C1 +2 × C2, ये इस तरह कॉलम में लिख दिया। तो देखें ये इसके किसके बराबर होगा? इसको जो है, ये मैट्रिक्स किसके बराबर है? ये 2/1 की मैट्रिक्स है, और 2/2 की मैट्रिक्स है, और ये मैट्रिक्स है 2/1 की। तो इसका जो रिजल्टेंट आएगा वो किसके बराबर आएगा? ये 2/1 का आएगा, 2/1 का मैट्रिक्स आएगा। इसका मतलब है कि यहाँ पे दो नंबर होंगे और एक कॉलम होगा। तो इससे इससे भी क्या आ रहा है? तो इसे देखें कि 1 × कॉलम 1 है 2 - 1, और इसको मल्टीप्लाई कर दिया 1 से, ये वाले 1 से, और प्लस इसको ये 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, और कॉलम 2 लिख दिया 3, और 4। तो इसका आंसर आ जाएगा 2 + 6 8
यहाँ पर 8, और ये आ जाएगा -1 मल्टीप्लाई, ये -7 -1, और ये 8 -8, तो 7, तो ये इसका आंसर होगा। तो इसको हमने कॉलम फॉर्म में लिख दिया। अच्छा, इसी तरीके से इसको भी लिख सकते हैं, इसको भी लिख सकते हैं। अच्छा, in exercise 5 determine whether B is in the column space of A and so express B as a linear combination of the column। अब इसको हम सवाल को उठा लेते हैं और फिर हम इसको सॉल्व करते हैं। ये सवाल उठाया, एक सवाल सॉल्व कर लेंगे, सारे सवाल इंशाल्लाह सॉल्व हो जाएंगे, बहुत आसान है। ये सवाल है, कहते हैं ये बी कॉलम स्पेस में है कि नहीं है इसके। तो कॉलम स्पेस में नहीं है तो फिर क्या करेंगे कि इधर हम लिखेंगे इसके, यहाँ पर हम वेरिएबल बनाएंगे एक्स, वाई और जेड। अब अगर हम इसको कॉलम से इसकी सूरत में लिखना चाहें तो क्या होगा, इसकी इक्वेशन क्या बनेगी, इसकी बनेगी 1x प्लस वाई प्लस 2z। यहाँ से x प्लस वाई प्लस 2z इज इक्वल टू -1। इसी तरीके से इससे भी बन जाएगी, इससे भी बन जाएगी, इससे भी बन जाएगी। तो ये रॉ एशेलन फॉर्म में आपके पास फॉर्म में आ जाएगा ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। ये आ जाएगी 1 1 2 -1 1 0 1 एंड 0, और 2 1 3 एंड 2। इसको आप डालें गॉस जॉर्डन में और आप फाइंड आउट कर लेंगे। इफ ये द आंसर कम्स आउट टू बी कंसिस्टेंट देन इट हैज अ सॉल्यूशन। दिस बी इज इन द कॉलम स्पेस। अगर ये नहीं आता जवाब एक्स वाई जेड की कोई वैल्यूज नहीं आती तो इसका मतलब है कि, और ये मैंने करके देखा हुआ है, यहाँ पे मैं इसको गॉस जॉर्डन में डाल के मैं इसको करता भी हूँ सॉल्व, तो मुझे पता लग जाता है कि ये जो चीज़ है वो नहीं आ रही। क्या था, 4/3, 4/3, 4/3 सेट मैट्रिक्स। ये 4/3 और नहीं, कहाँ आया, 4/3 नहीं आया ना, 4/3 तो नहीं, नहीं 3/4, 3/4 सेट मैट्रिक्स 3/4। तो ये हो गया 1, 1 2 -1 1 0 1 एंड 0। यहाँ से मैं डाल रहा हूँ ये 2 1 3 2। अब देखें आंसर क्या आया है। द सिस्टम इज इनकंसिस्टेंट, दैट मीन्स आंसर भी मैं देख चुका हूँ इस किताब के आखिर में। इसका मतलब है कि दिस इज नॉट इन द सॉल्यूशन, द बी इज नॉट इन द कॉलम स्पेस। इसी तरीके से आप क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करें और दूसरा 4 सॉल्व करें। 4 और 5 में सारे छुड़वा दिए हैं, मुझे जरूरत नहीं है इसको करने की। यहाँ से 7 भी है। अच्छा, फाइंड द बेसिस फॉर द नल स्पेस एंड द रॉ स्पेस। अब मैं आपको सीधा सीधा रॉ स्पेस की तरफ लेके जाता हूँ, ये वाला सवाल सॉल्व करवाता हूँ। क्योंकि रॉ ऑपरेशंस करने हैं, इसको मैं रॉ एशेलन फॉर्म में यहाँ पे गॉस जॉर्डन मेथड से मैं इसको कर सकता हूँ, इसलिए आई विल जस्ट यूज दैट अगेन फॉर फाइंडिंग द सॉल्यूशन। अच्छा, मैं आपके साथ रहते हुए करता हूँ इसका, और तो ये है क्वेश्चन नंबर 9, और बेसिस वेक्टर मालूम करने हैं। तो इसको जो है शॉर्ट फॉर्म में लिया है इधर, और इसको जो है मैंने बड़ा कर दिया। ये मुझे डालना है, ये मुझे डालना है आ, यहाँ पे, तो यहाँ डालना है, तो इसको डाल देते हैं यहाँ पर। थोड़ा सा इसको जो है ना यहाँ पे ले आते हैं, अब नजर आ रहा है बिल्कुल सही। तो 1 -1 3 5 -4 -4 7 -6 एंड 2। अब ये देखें इसको, ये देखें, ये इसका ए हो गया। 1 -1 3, 5 -4 4 -4 7 -6 इसको सॉल्व सॉल्व करते हैं, सॉल्व इट। ये सॉल्व किया, सोल्यूशन देखते हैं। तो सोल्यूशन, तो आपके पास रॉ क्या आ गया, कॉलम वेक्टर्स क्या आ गए, 1 0 -16 0 1 -9। 9 क्वेश्चन हैं, आंसर आर ऑन 754 पेज।
तो ये 9 क्वेश्चन है, 9th क्वेश्चन है। बेसिस फॉर द नल स्पेस को छोड़ो, बेसिस फॉर द, तो ये आ गया 0 1 0 -16, और दूसरा आ गया 1 0 1 -19। ठीक है, ये तो बात हो गई। अच्छा, दूसरा ये कि इसका कॉलर बेसिस फॉर द कॉलम स्पेस, कॉलम स्पेस का सवाल नहीं है ये। अच्छा, सवाल ही है, लेकिन इसका कॉलम स्पेस क्या बनेगा? सवाल देखते हैं क्या था इसका सवाल। 254 पे था? नहीं, 257 पे था, 257 पे। यस। नहीं। ओके, ये था, यहाँ पे था। अच्छा, 9, फाइंड द नल स्पेस एंड द रॉ स्पेस। सर नल स्पेस था, रॉ स्पेस था, वो कॉलम स्पेस नहीं था। ये मैंने आपको बता दिया कि ये रॉ स्पेस बन गया। अब मैं कॉलम स्पेस वाले पे जा रहा हूँ। लेट्स सॉल्व दिस क्वेश्चन ऑफ 11th मैट्रिक्स इन रॉ एशेलॉन फॉर्म। ये रॉ एशेलॉन फॉर्म है। तो रॉ एशेलॉन फॉर्म में तो इसका मतलब है कि हमें जो है कोई ऑपरेशंस करने की जरूरत ही नहीं है, लेकिन ऑपरेशंस तो हमारे पास मौजूद हैं। तो इसके जो अ, ये देखें, ये आंसर मैच कर लीजिएगा। ये रॉ वेक्टर 1 0 2 और 0 0 1, और कॉलम बेसिस क्या है? 1 0 0 और 2 1 0। ये हो गया। अच्छा, 13 का मैं ये वाला सवाल सॉल्व कर देता हूँ, एंड देन वी विल बी डन इंशाल्लाह। ये वाला सवाल हम सॉल्व करते हैं। ये है 4/5। 4/5, 4/5 का जो है मैट्रिक्स हम चलते हैं। ये 4, ये 5। अब इसके अंदर हम ये वाली मैट्रिक्स डाल देते हैं। ये वाली मैट्रिक्स डाल देते हैं हम। 1 -2 5 0 0 और 3। अच्छा, -2 5 -7। और मेरे पेट में कुछ हो रहा है कि रिकॉर्ड नहीं हुई होगी तो इसका सही रिकॉर्ड हो रही है। मैंने कहा कि मैं रिकॉर्ड करने का बटन दबाना भूल गया, और ये सारी जो है मैं बकबक इतनी करता रहा। चले, तो शुक्र है अल्लाह का। आसानी अल्लाह देते हैं, मुश्किल अल्लाह देते हैं। नहीं, मुश्किल तो अल्लाह नहीं देते, आसानी अल्लाह देते हैं। मुश्किल हमारे अपने अमल की वजह से होती है, ये उसूल है। कोई अच्छी बात होगी तो अल्लाह की तरफ से होगी, कोई बुरी बात होगी तो वो हमारे अपने अमल का नतीजा होगा। ये है, कमियों को अपनी तरफ मंसूब करें, अच्छा अच्छाइयों को अल्लाह की तरफ मंसूब करें। अच्छा, 1 -2 5 0 3 -2 5 -7 0 -6 1 -2 3 -3 -3 -8 -9 1 ओके, सॉल्व इट एंड वी जस्ट गॉट इट द सोल्यूशन। ये आपका नल सेट भी आ गया है यहाँ पे, क्योंकि ये x3 वेरी वेरिएबल आ गया, तो ये हम इसको सोल्यूशन नल सेट में भी, नल स्पेस पे भी हम यहाँ पे कर सकते हैं, लेकिन हम इसको सोल्यूशन में रॉ वेक्टर्स लिखते हैं कि व्हाट आर माय रॉ वेक्टर्स। तो ये मेरे पास रॉ वेक्टर्स आ गए, 3 आ गए, और और 3 ही कॉलम स्पेस आ गए, कॉलम वेक्टर्स आ गए। गो एंड फाइंड आउट द सोल्यूशन। 754 पे 13 का ए है, 13 का ए है, 13 का ए, ओहो, 7 754 कहाँ जाता है ये? अच्छा, 754 क्यों नहीं जा रहा भाई? आजा, आ गया है, आ गया है। अच्छा, 13 का आंसर आ गया है। ये आ गए हैं कॉलम वेक्टर्स 1 0, बेसिस फॉर द रॉ स्पेस 13 ए। ये देखें, 1 0 11 0 3 0 1 3 0 0 और 0 0 0 1 0। ये आ गया। और ये वाले जो वेक्टर्स के हैं, पहला दूसरा और तीसरा चौथा, पहला दूसरा और चौथा, पहला दूसरा और चौथा। तो ये देखें, पहला दूसरा ये वाला सोल्यूशन हम ले लेते हैं, यहाँ से उठा लेते हैं इसको। ये यहाँ से उठा लिया कॉलम में से। अब हम चले जाते हैं इसमें 254 पे। अरे यार, 254 पे नहीं है। ये 30 सब क्वेश्चन पे जाना है ना।
13 पे जाना है, पहला दूसरा चौथा। तो यहाँ पे था हमारा आंसर। तो ये देखें, पहला 1 - 2 -1 3, दूसरा इज 2 5 3 and 8, और चौथा इज 0 0 1 1। So that's how you find out the raw space, basis of the raw space and the column space. Raw space तो डायरेक्ट रिड्यूस एशेलॉन फॉर्म से आ जाती है, और कॉलम स्पेस हम निकालते हैं वहां से है, लेकिन पिवट पॉइंट्स और वो जो कॉलम स्पेस जिसके अंदर वन अपनी जगह पर होता है पिवट पे, तो वो वाले जो है वेक्टर्स जो होते हैं वो कॉलम स्पेस के बेसिस बन जाते हैं। So that's what I just covered right now. In the next video, inshallah, I will be covering more, or one more question will be covered, in then in one video or the two, you will be just through. तो ये मैंने आपको सारा बता दिया है। प्लीज़ कमेंट कीजिएगा कितना समझ आया, कितना यूजफुल लगा है। सही है, दुआओं में लगे रहें, इंशाल्लाह नमाज की पाबंदी करें।